Hello students, we have already studied the chapter The Starting Point by Milkha Singh. Today we will discuss the exercises of this chapter. If you have not studied this chapter, you can go to my channel RVM Online Classes and read this chapter in the playlist of class 6th. Or you can also go to the description of this video and click on the link and read this chapter, okay? Understanding the text. A. Answer these questions. What made the extra glass of milk very special for Milkha Singh? The answer is Milkha Singh had suffered great want and deprivation in his childhood. So the reward of getting a glass of milk meant a great deal to Milkha Singh. The answer is in paragraph 3 of this chapter. Question number 2. Luck was with me that day and I finished 6th in the race. Apart from the milk, there were 2 other factors that helped him finish 6th. What were they? Answer. The 2 factors that help him finishing 6th are: first, a sense of mission Milkha felt about the race, and second, taking the lead in the first 2-3 miles. Question number 3. Who was Gurudev? Why was Milkha Singh grateful to him? Answer. Gurudev Singh was a Havaldar and also Milkha's instructor. Milkha believes that it was Gurudev's training method that helped him become a world-class athlete. Question number 4. How did the men wearing Indian blazers motivate Milkha Singh? Answer. Milkha wanted to become one among the men who got to wear the Indian blazers. He wanted to feel the power and prestige that came with wearing those blazers. He wanted his country to be very proud of him. These thoughts motivated Milkha. Okay. Question number 5. What rule of thumb did Milkha Singh follow in practice for 400-meter race? Why does he call it a thumb rule? Milkha did not know the rules of the 400-meter race. In preparation of the race, he would run one round at his best speed, rest off a while, and then rest for a while, then run again. He calls it a rule of thumb because he was practicing to his own guidelines. Okay? Question number 6. What secret activity did Milkha Singh carry out for months? Answer. In the evenings when his colleagues would be resting, Milkha would go practicing on the grounds for months secretly before dinner. Question number 7. How did the meeting with Brigadier S.P. Vora change Milkha Singh's life? Paragraph 19. Answer is in paragraph 19. After the meeting with Brigadier S.P. Vora, Milkha has taken off fatigue duty and given more time to practice running. He was given better facilities, a nutritious diet, and special attention was paid to his grooming. Meeting Brigadier S.P. Vora opened up a world of opportunities for Milkha. Okay? Now let's come to B. Choose the best option to complete each sentence. First question is on finishing 6th, Milkha Singh was overwhelmed with joy. Option A, by the promising of a supporting career, or by option B, by all the cheering from friends and strangers alike.
Option C, by the happiness he was bringing to his family. Why he was overwhelmed? He was overwhelmed by all the cheering from friends and strangers alike. B option is correct. Milkha Singh was surprised that he was chosen to run the 400-meter event because Milkha Singh क्यों सरप्राइज था उसे जब चुना गया 400-meter event दौड़ने के लिए? Option A, he had never before run a 400-meter race. B, he knew he was young and small at his age. C, he had not completed his training. Option A, he had never before run a 400-meter race. उसने कभी पहले 400-meter race नहीं दौड़ा था. Option C, the Eureka moment helped him. A, decide that he would run for Team India. यूरेका मोमेंट ने उसे ये डिसाइड करने में मदद किया कि वो टीम इंडिया के लिए दौड़े या ना दौड़े. नंबर बी ऑप्शन, प्लान बेटर फॉर ओलंपिक्स. ओलंपिक्स के लिए बेटर प्लान करने में. सी, टू डिसाइड टू ज्वाइन स्पोर्ट्स एकेडमी. द यूरेका मोमेंट हेल्प हिम डिसाइड दैट ही वुड रन फॉर टीम इंडिया और नॉट. ओके, डिसीजन लेने में हेल्प किया कि वो एथलीट उसे बनना चाहिए या नहीं. और next question is, Milkha Singh was disheartened that he came fourth in 400-meter event because he had run the race with India's best athlete. He had ensured his place on the 4x400 relay team. There is no place for disappointment in sports. A, he had run the race with India's best athlete. क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए. इस क्वेश्चन 5, Milkha Singh saw his nighty ground practice as something against the rules. Training for 400-meter event, part of fatigue duty. नंबर बी ऑप्शन, ट्रेनिंग फॉर 400-meter इवेंट. वो रोज रात में दौड़ता था, प्रैक्टिस करता था 400-meter इवेंट में दौड़ने के लिए. ओके, स्ट्रक्चर एंड यूजेस काइंड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ द एक्शन इज डन. मैनर क्या कहता है? एडवर्ब ऑफ मैनर कहता है कि एक्शन कैसे होना चाहिए. रेगुलरली, अटेंटिवली, स्वीटली. काम कैसे होना चाहिए? रेगुलरली, लगातार होना चाहिए. अटेंटिवली, बिल्कुल ध्यान से होना चाहिए. स्वीटली, बहुत प्यार से होना चाहिए. एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन. एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है हमें कि काम कब हुआ है? व्हेन द एक्शन इज डन. टुमारो मतलब कल. टुडे मतलब आज. यस्टरडे मतलब पिछले दिन. आफ्टरवर्ड्स थोड़ी देर बाद. नाउ अभी. सून थोड़े देर में. लेटर बाद में. अर्ली अगो पहले, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले या कुछ टाइम पहले. बिफोर. ये सारे वर्ड्स क्यों यूज होते हैं? टाइम बताने के लिए. सारे एडवर्ब्स एक्शन का टाइम बताते हैं. टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन. फर्स्ट वाले क्या बताते थे? मैनर बताते थे कि टेल अस हाउ द एक्शन इज डन, कि काम कैसे हुआ है. मैनर क्या बताता है? हाउ द एक्शन इज डन. एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है व्हेन द एक्शन इज डन. एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर द एक्शन इज डन. प्लेस क्या बताता है कि काम कहाँ हुआ है? वेयर द एक्शन इज डन. हियर, देयर, एवरीवेयर. यहाँ वहां, हर जगह. इनसाइड, आउटसाइड, अंदर बाहर, अंडरनीथ किसी चीज के नीचे, अप ऊपर, डाउन नीचे. ओके. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? इंडिकेट हाउ ऑफन द एक्शन टेक प्लेस, कि काम कब कब होता है. ओके. ऑफन लगातार. ऑलवेज अक्सर. ऑफन अक्सर. ऑलवेज हमेशा. समटाइम्स कभी कभी. नेवर कभी नहीं. डेली रोज. एनुअली हर साल. एवरी संडे हर संडे. ओके. तो ये सारे एडवर्ब्स आपको क्या बताते हैं? दे टेल यू मैनर, टाइम, प्लेस and frequency of action. Okay, complete the sentences on the next page with the correct adverb from the box. Use the question clue to help you. क्या करना है आपको? बॉक्स में जो एडवर्ब्स दिए हैं उनसे नेक्स्ट पेज के सारे क्वेश्चंस जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी
completed for you as an example. He knew it would be difficult, but Tarun faced the challenge boldly. How did Tarun face the challenge? Question था, उसका आंसर है boldly. The police dog at the crime scene raced away into the wood. Crime scene पे पुलिस का कुत्ता woods के तरफ दौड़ा. Then it stopped. तब फिर वो रुक गया. How did the police dog stop? अब देख सकते हो ऑप्शन में. कि ऑप्शन में क्या क्या था? सडनली. कैसे वो रुक गया? अचानक वो रुक गया. देन व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस? सडनली. द डॉग स्टॉप्ड सडनली. अब क्या फिल करेंगे वहां पे? सडनली. SUDDENLY. सडनली. इन द मिडिल ऑफ डैश. वेयर डिड इट स्टॉप? वो कहाँ रुका? इन द मिडिल ऑफ नोवेयर. पहले में क्या होगा? सडनली. और सेकेंड वाले में होगा नोवेयर. सडनली स्टॉप्ड इन द मिडिल ऑफ नोवेयर. Number 3 question. Dash all blanks were closed. There was a thrive in the city. When were the banks closed? बैंक कब बंद हो गए? Yesterday. Fill in the blanks में क्या होगा? Yesterday. Yesterday all the banks were closed. There was a strife in the city. क्या फिल होगा यहाँ पे? Yesterday. 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 We love the outdoors. We go for a walk. Dash morning. How often do they go for walk? Every day. Every day होगा. We go for walk every morning. मतलब every morning. EVER. Every morning. EVERY. Every morning. Okay. The moment they found that the bag of jewels was missing, they searched. जिस moment उन्हें पता चला कि ज्वेलरी का बैग मिसिंग है, they searched dash for it. Where did they search for the jewelry bag? Everywhere. क्या होगा यहाँ पे? Everywhere. हर जगह उन्होंने खोजा. Everywhere. Okay. Number 6. Arpana and her brother decided to stay dash as it was raining. Inside. Indoors. आपके ऑप्शन के indoors. उन्होंने अंदर रहने का तय किया. Indoors. 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 Okay. So next is adverbs, type and position. Read these sentences. I have given a perfectly balanced diet. मुझे बिल्कुल perfectly balanced diet दिया, जो कि बिल्कुल perfect है. तो balanced diet की quality क्या है? Perfectly. ये क्या adverb है? बता रहा है. Type. Balanced diet का type बता रहा है. He stared at me, then nodded and walked away briskly. वो मेरी तरफ देखता है, सर हिलाता है और चला जाता है. तो कैसे वो बता रहा है टाइप कि वो कैसे चला जाता है? ब्रिस्कली. Fortunately, I met Brigade Vora at the time when I really needed to practice a lot. Fortunately क्या है? ये भी एक adverb है. The adverb perfectly in sentence 1 is linked to the adjective balance. डाइट का जो एडजेक्टिव है, कैसा डाइट? बैलेंस डाइट. तो एडवर्ब किससे? ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है. ओके. एडवर्ब एडजेक्टिव से लिंक्ड है. ओके. विच फॉलो इट. हाउ बैलेंस वॉज द डाइट? डाइट कितना बैलेंस था? परफेक्टली बैलेंस था. It is an adverb which modifies an adjective and its position is always before the adjective. ये एक ऐसा adverb है जो कि adjective को modify करता है, adjective के बारे में बताता है और ज़्यादा, और
ये इसका पोजीशन का ये हमेशा ही एडजेक्टिव के पहले आता है. ओके, ये एडवर्ब हमेशा ही एडजेक्टिव के पहले आता है. ओके, the adverb briskly in sentence 2 is linked to verb walked. Briskly कैसे चला गया? walked briskly. Okay, in this case it occurred at the end of the predicate के end में आया है. ये जो सेंटेंस है आपका उसके एंड में आया है. बट इट कैन ऑल्सो अकर बिफोर द वर्ब, पर ये वर्ब के पहले भी आ सकता था. ये कह सकते थे कि ही स्टेयर्ड एट मी देन नॉडेड एंड ब्रिस्कली वॉकड अवे, ऐसे भी लिख सकते थे. ब्रिस्कली को वर्ब के पहले भी ला सकते थे. व्हेन इट इज नॉट प्राइमरी इंपॉर्टेंट टू द सेंटेंस, कब? जबकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता सेंटेंस में. ही स्टेयर्ड एट मी then nodded and briskly walked away. He stared at me, then nodded and briskly walked away. तो verb है ये walk और उसके पहले आपका adverb आ जाता. Okay? What is the adverb fortunately in sentence 3 linked to? Fortunately इस sentence में sentence 3 में किस चीज से linked है? It is linked to any particular part but इट इज नॉट लिंक टू एनी पर्टिकुलर पार्ट बट टू द होल ऑफ द सेंटेंस. ये पूरे ही सेंटेंस से ये जो काम हो रहा है ये पूरे सेंटेंस के बारे में फॉर्चुनेटली कह रहे हैं कि फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ. इट मेक्स अ कमेंट ऑन व्हाट द होल सेंटेंस से. ये पूरे सेंटेंस पे ही कमेंट करता है. द कमेंट दैट इज appear to be so. Such an adverb called a sentence adverb. ऐसा adverb जो कि पूरे sentence पे comment करे उसको क्या कहते हैं? sentence adverb कहते हैं. Fortunately क्या है यहाँ पे? sentence adverb है. Okay, is usually placed at the beginning of the sentence. और ऐसे सेंटेंस एडवर्ब जो होते हैं वो अक्सर ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं. ओके, कहाँ होते हैं? सेंटेंस की शुरुआत में, बिगनिंग में होते हैं. बट इट कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड बिफोर द प्रिडिकेट, मगर इसे प्रिडिकेट के पहले भी लगाया जा सकता है, और वर्ब या फिर वर्ब के पहले, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस या फिर सेंटेंस के एंड में. शी हैड अपेरेंटली फॉरगॉटन. अपेरेंटली क्या है यहाँ पे? सेंटेंस एडवर्ब है. She had apparently forgotten what he could do. वो अचानक भूल गई कि वो क्या कर सकती थी. तो इस apparently को आप आगे भी लिख सकते थे. Apparently she had forgotten what he could do. Okay? या फिर सेकेंड सेंटेंस में देखिए आप, she apparently had forgotten what he could do. Okay? In third it is she had forgotten what he could do apparently. तो सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, वर्ब के पहले भी आ सकता है, और प्रेडिकेट के पहले भी आ सकता है, वर्ब के पहले भी आ सकता है. ओके, place the adverb in the bracket in appropriate place where the sentence on the next page. There may be before then on one correct position for some of them. Try and identify the kinds of adverbs. Adverbs का kind identify करना है आपको, किस तरह का adverb है, और fill करना है sentence में. We have constructed another floor upstairs. We have constructed another floor upstairs. Adverb of place. Upstairs क्या है? Adverb of place है. Neha could captivate people with her storytelling. नेहा अपने स्टोरी टेलिंग से लोगों को कैप्टिवेट कर लेती है, लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है. तो इसको क्या लिख सकते हैं इसका? नेहा कुड ऑलवेज कैप्टिवेट पीपल विथ हर स्टोरी टेलिंग. क्या लिखेंगे? नेहा कुड ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज डाल देंगे कुड के बाद. ऑलवेज, नेहा कुड ऑलवेज कैप्टिवेट पीपल विथ हर स्टोरी टेलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शुक्लास मूव्ड हाउस. तो इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं? द शुक्लास मूव्ड हाउस लास्ट संडे. हाउस के बाद क्या लिख देंगे? लास्ट संडे. द शुक्ला मूव्ड हाउस लास्ट संडे. वी डिडंट गेट एनी रेस्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम.
हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान बिल्कुल भी आराम नहीं मिला. वी डिडेंट रियली गेट, रियली को कहाँ डालेंगे? डिडेंट के बाद और गेट के पहले. वी डिडेंट रियली गेट एनी रेस्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड. रियली. Okay, I threw. Next question is I threw the ball of paper but missed the waste paper basket. Carefully, narrowly. I threw the paper ball carefully. Carefully. I threw the paper ball carefully but missed the waste paper basket narrowly. Last में क्या डालेंगे sentence के? Narrowly. Okay, so this is also completed. Complete the sentence in each set. Word in use, phrase with off. Off से जितने भी phrases होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है. यहाँ पे the whistle blew and we set off. सीटी बजी और हम दौड़े. I took off my canvas shoes and ran barefoot. मैंने अपने कैनवस शूज उतारे और नंगे पांव दौड़ा. तो set off, took off. I felt quite relieved that I had been let off easily. मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ, रिलीफ फील हुआ, आराम महसूस हुआ कि मैं आसानी से मुझे छोड़ दिया गया. तो each highlighted phrase is a combination of verb. सारे जो phrases हैं ये combination of set, took, let जो क्या है सब verb है and the word off. off के साथ लगे हुए ये सारे verb and together they mean something. और ये दोनों साथ मिलके कुछ और ही mean करते हैं. जैसे first sentence में the whistle blew off and we set off. set off मतलब वो लोग दौड़ना शुरुआत करना, किसी चीज की स्टार्टिंग करना. set off उन्होंने दौड़ने की स्टार्टिंग करी. ओके. आई टुक ऑफ माई कैन. टुक ऑफ मतलब निकालना, उतारना, कपड़े उतार देना किसी चीज को, जूते निकालना या फिर जूते उतारना. ओके. तो टुक ऑफ मतलब क्या है? जूते निकालना. इन थर्ड सेंटेंस आई फेल्ट क्वाइट रिलीव दैट आई हैड बीन लेट ऑफ इजली. थर्ड सेंटेंस में क्या है? लेट ऑफ मतलब आराम से किसी चीज से बच जाना, स्किप कर जाना को क्या कहते हैं? लेट ऑफ. कंप्लीट द सेंटेंस इन ईच सेट विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उससे सेंटेंस कंप्लीट करना है आपको. यू मे हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड इन सम केस. सेंटेंस ए, व्हाई हैज द पिकनिक बीइंग डैश ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक. क्या होगा यहाँ पे? कॉल ऑफ. कॉल ऑफ मतलब कैंसिल होना. Why has the picnic been put off? या फिर put off भी लिख सकते हैं, किसी चीज को टाल देना. put off until next week. call off मतलब कैंसिल हो जाना. put off मतलब कोई चीज पोस्टपोन्ड हो जाना. पोस्टपोन्ड हो जाना अगले सप्ताह के लिए. तो पिकनिक क्या हुआ? अगले सप्ताह तक के लिए टल गई, पोस्टपोन्ड हो गई. तो पुट ऑफ. बिकॉज ऑफ बैड वेदर. वाई डिड द रेस्क्यूअर टीम डैश ऑफ द सर्च? बिकॉज इट वॉज डार्क एंड दे कुडंट सी एनीथिंग. रेस्क्यूअर ने सर्च बंद क्यों कर दी? क्योंकि अंधेरा हो गया था. तो क्यों बंद करना मतलब किस चीज को खत्म करना. कॉल ऑफ. वाई इज द टीम सो कॉन्फिडेंट? टीम इतनी कॉन्फिडेंट में क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ देयर कैप्टन. हिज कॉन्फिडेंस हैज डैश ऑफ ऑन देम. रब ऑफ. किसी से कोई चीज लेना मतलब किसी से किसी चीज में कुछ आना को क्या कहते हैं? रब ऑफ. रब्ड ऑफ लिखेंगे यहाँ पे. रब्ड ऑफ. इट इज बिकॉज हिज कॉन्फिडेंस हैज रब्ड ऑफ ऑन देम. when is the match scheduled to? मैच कब शेड्यूल हुआ? एट नून. आंसर क्या है? एट नून मतलब किक ऑफ. किक ऑफ एट नून. कब शुरू होगा मैच? किस चीज की स्टार्टिंग की टाइम पूछते हैं तो किक ऑफ एट नून. नून में स्टार्ट होगा. वाई
आर यू अनहैप्पी अबाउट द न्यू बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस? तुम नए बिल्डिंग के बारे में उदास क्यों? बिकॉज इट डैश ऑफ द व्यू इन द पार्क फ्रॉम द विंडो, क्योंकि वो व्यू रोकता है, मतलब आपके सामने आ गया है और आपके नज़ारे को रोक रहा है, आप देख नहीं पा रहे उसकी वजह से. तो शट ऑफ क्या होगा? शट ऑफ, SHUT, shuts off the view of the park from my window. Next is complete sentences with suitable phrases from the text. It was my dash when I saw the kite flying in the sky and decided I want to be a mountain climber. पैराग्राफ 9 से आपको देखकर फिल करना है. यूरेका मोमेंट, जिस तरह मिल्खा सिंह ने डिसाइड किया था 400 मीटर रेस में इंडियंस को देखकर कि उसको एथलीट बनना है या नहीं, उसी तरह वो क्या था? यूरेका मोमेंट है इसके लिए भी. इट वॉज माई यूरेका मोमेंट व्हेन आई सॉ द क्लाइट फ्लाइंग इन द स्काई एंड डिसाइडेड आई वॉन्ट टू बी अ माउंटेनर क्लाइंबर. यूरेका मोमेंट, EUREKA, यूरेका मोमेंट, MOMENT, यूरेका मोमेंट. आई मिस स्कूल फॉर अ वीक, आप 9th पैराग्राफ में देख सकते हैं यूरेका मोमेंट. आई मिस्ड स्कूल फॉर अ वीक व्हेन आई रिटर्न्ड द फॉलोइंग वीक, कैच अप विद वर्क. कंज्यूम्ड माई टाइम, क्या हो गया यहाँ पे? कंज्यूम्ड माई टाइम. आई मिस स्कूल फॉर अ वीक, मैंने एक सप्ताह के लिए स्कूल मिस कर दिया, नहीं आ पाया वो. व्हेन आई रिटर्न द फॉलोइंग वीक, अगले सप्ताह जब मैं लौटा, कैचिंग अप विद द वर्क कंज्यूम माई टाइम. काम के साथ अपने आप को कैचअप करना, वो काम पूरा करना ने मेरा टाइम ले लिया. गांधी जी नेवर अलाउड हिमसेल्फ टू गिव इन टू डिफीट सिंपली बिकॉज ही सॉ डैश इन माई स्ट्रगल. 19th पैराग्राफ से देखकर आपको फिल करना है. बिकॉज इम्यूनसेबल अपॉर्चुनिटी क्या होगा? इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटी, INNUMERABLE, इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITIES, opportunities, innumerable opportunities. Okay, next, 4th is the captain decided that we would trek at night. कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम रात में ट्रैकिंग पे जाएंगे, चढ़ाई करेंगे. द डिसीजन बिकेम द डैश ऑफ आवर न्यू एडवेंचर. स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट, एडवेंचर की यहां से शुरुआत हुई. स्टार्टिंग point of our new adventure. After walking for an hour in the desert sun, a bottle of plain water. Desert sun. After walking for a while in the desert sun, comma, a bottle of plain water was like a big treat. Big treat. जैसे मिल्खा सिंह के लिए बिग ट्रीट था, वैसे ही गर्मी में 1 घंटे धूप में चलने के बाद एक बॉटल पानी क्या होता है? बिल्कुल ट्रीट की तरह होता है, भोज की तरह होता है, कहते तो पार्टी की तरह होता है. ओके, स्पीच प्रैक्टिस, प्राइमरी स्ट्रेस. In a word of 2 or more syllabi, is one particular syllable is pronounced more forcefully than the other. We say that such a syllable is stressed. Stressing the correct syllables in word is an important part of English pronunciation. These words have 2 syllables. Listen and repeat the words. Note that the first syllable is stressed in each word. Open, opened, meeting, given, forces, army, morning, nonsense, 20. These words have 3 syllables. Listen and repeat them. Now where the stress is. Fortunate, radical, taciturn, attention,
competent, potential, traditional, privilege, consequence. 15. Okay. डिक्शनरी वर्क, यूज द मिनी डिक्शनरी टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाईलाइटन. जितने भी वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं ब्लू कलर के हैं, उनके आपको मीनिंग्स ढूंढने हैं अपनी डिक्शनरी में, अपनी मिनी डिक्शनरी में. ओके. एंड नेक्स्ट इज राइटिंग पार्ट. You have to write a paragraph. Notice how the author has used time thinkers to connect the sentence with narrating what he did in the evening. After a day of hard work, I could carry my dinner back to the backyard barrack and hide the plate of food under my bed while my colleagues relaxed in the evening. I would be at the ground practicing. First, I would run one round at the highest speed possibly, rest of the while, and then another round. We can also use time linkers to describe a routine or it to say what a person does over a period of time. ये सारे words जो हैं टाइम के लिए यूज होते हैं. soon, in the morning, in the evening, until, hours before, hours later, during the practice, during lunch, before, sometimes, soon after, after. ये सारे words आप यूज कर कर क्या कर सकते हैं, एक स्टोरी लिख सकते हैं. ओके. Imagine that you attended a cricket coaching camp. Write a short paragraph about the camp. आप सोचिए कि आप ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, कोचिंग कैंप जा रहे हैं क्रिकेट की. आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, अपनी स्टोरी लिखनी है कि क्रिकेट कोचिंग कैंप में क्या किया आपने, इंक्लूडिंग डिटेल्स अबाउट व्हेन यू गॉट अप इन द मॉर्निंग, व्हाट यू डिड इन द मॉर्निंग, आफ्टर इन द इवनिंग. और आपको सारी डिटेल्स लिखने हैं कि आप सुबह में क्या करते थे, आप मॉर्निंग में उठने के बाद क्या करते थे, और आफ्टरनून और दोपहर में और शाम में क्या करते थे, आफ्टरनून और इवनिंग में क्या करते थे. यू मे यूज सम ऑफ द लिंकर्स इन द बॉक्स एंड एड मोर अप्रोप्रिएट वंस. आप कुछ लिंकर्स जो बॉक्स में थे, टाइम लिंकर्स, वो यूज कर सकते हैं. दीज हिंट विल हेल्प यू राइट द पैराग्राफ. ये जो हिंट्स दिए हैं नीचे वो आपको पैराग्राफ लिखने में मदद करेंगे. गेट अप अर्ली, जॉगिंग एंड एक्सरसाइजिंग, नेट प्रैक्टिस, ब्रेकफास्ट, डिसीजन विद कोचेस, प्रैक्टिस लंच, रेस्ट फॉर एन आवर, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वॉच मूवीज और फेमस मैचेस एंड प्लेयर्स, डिनर, फन टाइम, स्लीप. अब क्या लिखना है. इमेजिन दैट मिल्खा सिंह राइट्स अ लेटर टू ब्रिगेड एसपी वोरा थैंकिंग हिम फॉर प्रोवाइडिंग हिम विद बेटर फैसिलिटीज एंड न्यूट्रियस डाइट एज वेल एज टाइम टू प्रैक्टिस रनिंग. आपको क्या लिखना है, फॉर्मल लेटर लिखना है. आप मिल्खा सिंह है समझिए, और आपको लेटर लिखना है किसको, ब्रिगेड एसपी वोरा को. उनको थैंक कहते हुए कि उन्होंने आपको बेटर फैसिलिटी और न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड किया. सो राइट दिस लेटर, फॉर्मल लेटर. सो exercise discussion of this chapter is completed. Thank you for watching this video. Guys, if you have any doubt, you can ask me commenting in the box. And thank you for watching this video, guys.